We are going to start. We are going to discuss the few things. Number one, output based questions. Number two, series generation with the for loop. After that, if I get the time and you all are comfortable, then we can start prototype based question in the function. Understand? These three topics are very, very important. Very, very important. Nandini, are you there? Yes, sir. Please help to Anika to join the meeting. She is facing some problem. Tell her to restart mobile. Yes. Fast. तो मिल जाएगी। Okay. Now, first of all, I want to start from the output based questions. See, this is BlueJ, in which we are going to start the programming for the new students, output based. I just want to delete all these things. Class output based. This is my class name, in which first of all we start the void main. After creating the class, we have to create a void main function. Void main is the main execution point of the program. Without void main, without main function, our program cannot be executed. The old students are aware about it, but today some new student has joined. Okay, my first question, output based. Okay, first of all, I'm writing all the output based question. Then you have to tell one by one. अपनी कॉपी पर आप इन क्वेश्चंस के आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए, जिनको जितना आइडिया है. मैं जब तक यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ, आई एम जस्ट फ्रेमिंग सम क्वेश्चंस, तब तक आप लिखिए. हेलो, यस, जी जी बताइए, प्लीज चलिए. क्लासेस स्टार्ट हो गई इनकी. अभी एक क्लास और, उनकी दो क्लासेस और हो चुकी हैं. So, good afternoon to all of you. Welcome back to my channel, Anis Sir's Technology. So today, this is the continuation series of high school, and in which we are discussing the output based questions. And I just typed few output based question, and I will discuss one by one after your trying. Okay, this is the increment and decrement based questions. और प्लीज कीप वन थिंग इन योर माइंड कि ये सारे क्वेश्चन, दीज आर ऑल द क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, और सब आ चुके हैं. इस पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं. एंड आई एम राइटिंग द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द आउटपुट. ओके,
ओके आप लोग कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग से करना स्टार्ट कर दीजिए, कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग से करना स्टार्ट कर दीजिए। Sir, Yes, please for the third question. yes, please tell. Do you want to ask any question? Yes, sir. Sir, please for the third question. First question. This is the first question. Sir, third. Third. Yes. This one is the third question. Yes, sir. Sir, scene. Any problem in the third question? Okay. Fourth. 5. Okay. Now the last. Last one. Raghu is there? Raghu. राघव को बोलिए क्लास ज्वाइन करने के लिए। क्लास स्टार्ट हुए 15 मिनट हो गए। क्या नहीं शो कर रहा है? ग्रुप में लिंक आया है। ग्रुप में चेक करिए। प्लीज चेक इन द ग्रुप। जस्ट 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। 1 सेकेंड मैम। 1 सेकेंड। लेट मी चेक। एक्चुअली मैम लिंक सेम होता है, द लिंक इज ऑलवेज सेम जिससे वो ज्वाइन करता है। ठीक, मैं फिर भी फॉरवर्ड करे दे रहा हूँ लिंक, क्योंकि उसके बैच के सारे स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। 1 सेकेंड। अरे अर्णव, जरा ग्रुप में एक बार लिंक को कॉपी करके पेस्ट कर दो।
Arna, are you there? Okay. Just copy the link in the group fast. Sudden. Thank you. Done. प्लीज वेट फॉर सेकेंड. मैं जरा इसे कंपाइल कर लूं कि अगर कहीं पर कंपाइलेशन एरर है तो पता चल जाएगी. लीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन. एक मिनट. एक्सपेक्टेड. Now it's fine. अब कोई एरर नहीं है. Now one by one I will discuss all the output based questions. Sir, can you please show the switch case one for a minute? Yeah, sure. Just 1 minute. Only 1 minute. One important combination I have missed. Just 1 second. That's fine. अब एक बार स्टार्टिंग से सारे क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिए और अभी हम आपसे पूछेंगे कि क्या आउटपुट आपने सोचा. ठीक है. और हर एक क्वेश्चन से आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी. एंड आई विल डू द ड्राई रन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस. लेकिन मैं चाह रहा था कि एक ट्राई आप करें. क्वेश्चन नंबर 2. Question number 3 is while based. Sir, please send the question in the group. Okay. Actually, there are multiple groups. 1 minute. आपके ग्रुप में क्वेश्चंस गए. आपको सेम लिंक पर रीज्वाइन करना है 3 मिनट के बाद, क्योंकि इस बैच का स्लॉट ओवर होने वाला है. समझ गए ना आप? सर, आई डोंट नो हाउ टू डू द अबव क्वेश्चन. नो प्रॉब्लम. ठीक है आदिल, I will explain.
आई विल एक्सप्लेन. मैं थोड़ा सा एक लेवल चेक कर रहा हूँ हर Okay, स्टूडेंट को कि क्या स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को ट्राई या अटेम्प्ट ले पाते हैं या नहीं. वैसे मैं सारे सॉल्व करवाऊंगा. सर कुछ क्वेश्चंस क्या अभी तक ज्वाइन नहीं किया तुमने? तुम कह रही हो कि नहीं हो रहा है ज्वाइन. सर कर लिया है. कर लिया. ओके ओके हाँ वो पहले का मैसेज है. ओके फाइन फाइन. चलो ठीक है. अनुष्का, आर यू देयर? ओके. तो क्लास 1 मिनट में ओवर हो जाएगी और जैसे ही क्लास ओवर होगी उसके बाद आपको रीज्वाइन करना है और रीज्वाइन के बाद हम एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे कि कौन से क्वेश्चन का क्या आउटपुट आ रहा है. ठीक है, कौन से क्वेश्चन का क्या आउटपुट आ रहा है मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, एक एक करके. यस. हाँ, आप लोगों के आंसर्स भी चेक करेंगे, ऐसा नहीं, आप लोगों के आंसर भी चेक करेंगे. यस. Sir, in the fourth question, in the print statement, sir. Please speak loudly. Sir, can you post? Yeah, I have posted in the group, man. मुस्तफा, मैंने ग्रुप में पोस्ट कर दिया है. That in the fourth. Which question? Sir, I'm saying in the fourth question in the print. Sir, Fourth- fourth question. Fourth. Yes. This is the fourth Yes, question. sir. In the last one, sir, you have written a plus equal to. In that you have to write value of a. Sir, you have written value of x. Value of a is The print 2. statement. अच्छा. Okay. Thank you. Actually, I just copy pasted. No problem. Thank you. Not fine. And I think this one is correct. This one is correct. Yes. I just copy and pasted, na? Okay, fine. My voice is clear to all of you, but students' voice is very much low today. Don't know why. See, the meeting is about to complete in few seconds. So please rejoin with the same link. Please rejoin the meeting with the same link. Okay, sir. Sir, can you post it our group? Sir, mil gaya. Okay. Please rejoin everyone. I want the complete 13 student again. Give the solution. Okay. So should I give the solution? Okay, one by one. Now see, इसका जो आंसर है वो आएगा 12. 1 second please. और मुझे हेलो. यस प्लीज चल बताइए. अच्छा. हाँ नहीं, एक्चुअली लास्ट क्लास भी ज्वाइन कर पाई थी. हाँ, तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, लेकिन कोई बात नहीं, उसका जो भी okay, fine. So the answer of the first question is 12, then 3. 12, then 3. Anyone agree? किसी का सही? Yes, sir. किसी का सही है? Sir, मेरा सही है. Yes, sir. Any other Sir. student? Yes, sir. सब मत कह क्या सही है, वरना हम चेक कर लेंगे सब. हाँ. Now, after disclosing the answer, then I will give the reason to everyone. Sir, this is the wrong output. My output or your output? Sir, your output is wrong. My output is wrong. Okay. Yes, Reason? sir. Sir, it will be only 12 because it is not in the curly braces. So only the first line will be executed. Okay, Anush. I will give you the reason. Why? Actually, this very good. Actually, sometimes I really like it when the student do the arguments, and it's very good. Excellent. Actually, Nandini, this is the basically right answer. Okay.
Now, how it is the right answer, I will explain you. Okay, just give me 1 second. See, आपका प्रिडिक्शन सही था, बस थोड़ा सा कहां पर आप रॉन्ग थी वो हम बताते हैं. सी, a की वैल्यू कितनी है? 12, करेक्ट. एंड b इज हाउ मच? 3. a is greater than b. Condition is true or false? Condition True. is true. That means this statement will execute. So 12 will be print, and after that there is no bracket, I understand. So this statement will be considered outside the if body. ये स्टेटमेंट आपका if की बॉडी के बाहर है, तो ये स्टेटमेंट तो आपका एग्जीक्यूट होगा ही, बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज नॉट कमिंग अंडर if. तो आपकी if की कंडीशन ट्रू हुई. ट्रू होने के बाद सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन पे आपका बीबी एग्जीक्यूट होगा, तो 13 और 3 विल बी प्रिंटेड लाइक दैट, बिकॉज देयर इज नो ब्रैकेट. अगर ब्रैकेट नहीं है तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट द कंट्रोल विल कम ऑन दिस स्टेटमेंट ऑल्सो, बिकॉज ये स्टेटमेंट आपका इफ की बॉडी के बाहर है. दिस इज आउटसाइड ऑफ इफ बॉडी. अंडरस्टैंड? जस्ट 1 सेकेंड. आंसर वो सही होता है जो कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर ले. तो लेट मी कंपाइल दिस प्रोग्राम. अभी हम सिर्फ फर्स्ट वाले को चेक करा रहे हैं, बाकी धीरे धीरे हम और भी चेक कराएंगे. तो सबसे पहले फर्स्ट आंसर अपना चेक कीजिए बाय एग्जीक्यूशन. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन ओनली 1. Can you please confirm? Can you please confirm? Yes, sir. Okay. Yes. Nandini, are you there? Okay, fine. अब आप सुनो, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं. I don't have any problem. ठीक है. A is greater than B, that means the condition is true. तो first of all, this statement will execute, and after that, this statement will also execute because there is no bracket and there is no else part. There is no else part. तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका एग्जीक्यूट होगा आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस स्टेटमेंट, बिकॉज दिस स्टेटमेंट विल बी कंसिडर आउटसाइड द इफ बॉडी. इसको अगर हम लिखें तो इट इज रिटन लाइक दैट. ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है. नाउ if the condition will true, first of all this statement will execute, then after that I will come out from the if body, then this statement will also execute. आप ही नहीं, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें. तो my first output is over. Okay, now coming to the second part. Just a moment please. अब अगर हम इसकी बात करें तो if के बाद ब्रैकेट नहीं लगा है. तो अगर ब्रैकेट नहीं लगा है तो केवल दिस स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट विल बी कंसिडर इनसाइड इफ, इनसाइड फॉर. फॉर के अंदर ब्रैकेट नहीं लगा है तो दिस स्टेटमेंट विल बी कंसिडर विद द फॉर बॉडी. और ये स्टेटमेंट आपका फॉर की बॉडी के बाहर है. तो जो स्टेटमेंट फॉर की बॉडी के बाहर होते हैं वो तब एग्जीक्यूट होते हैं जब आपका फॉर का लूप कंप्लीट हो जाता है. तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ओनली 1 सेकेंड. तो सबसे पहले i की वैल्यू कितनी है? 1, एंड द वैल्यू ऑफ c इज 2. यहां पर हमने i की वैल्यू को 2 कर दिया, तो नाउ i विल बी रिप्लेस्ड बाय 2, ओवरराइट हो जाएगा. एंड c प्लस प्लस, तो c की वैल्यू कितनी होगी? 3. अभी ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये फॉर के लूप की बॉडी के बाहर है. सिर्फ फॉर के साथ ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जो C++ पहला वाला लिखा है, ये वाला. देन I++, C++, C की वैल्यू 4. देन I++, I विल बी 4. साथ ही साथ हमें कंडीशन भी देखनी है. 4 less than 5, कंडीशन इज करेक्ट. C++, देन I++, I will be 5. 5 less than 5 नहीं, equal to 5.
तो कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो C++ 6, C++ 6, then I will become 6. Now 6 is not less than equal to 5. अब हमारा लूप ब्रेक हुआ, तो जब ब्रेक हुआ तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा बिकॉज दिस इज आउटसाइड फॉर बॉडी ड्यू टू मिसिंग ऑफ करली ब्रेसेस. देन C will be 7. Now two values will be print. How much I is 6. Then after some gap, C, that is 7. Do you understand? Do you understand? Can you please respond? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Can I sir. explain it again? Yes, sir. Okay. Someone is saying please explain the second question again. Okay. ठीक है. Sir, can you explain the last line how 7 come? Okay, fine. See, once again, please, I request to all the expert student, please have some patience. Okay, थोड़ा सा patience रखेंगे आज वो लोग. I is 1 and C is 2. पहले तो हम आपको ये बता दें कि अगर for में ब्रैकेट नहीं लगे, if there is no bracket with the for, तो केवल ये वाला स्टेटमेंट for की बॉडी के अंदर माना जाएगा, कंसिडर किया जाएगा. Okay, sir. और ये वाला स्टेटमेंट for की बॉडी के बाहर है और ये भी बॉडी के बाहर है. तो जो बाहर है स्टेटमेंट वो तब एग्जीक्यूट होंगे जब for का लूप कंप्लीटली ओवर होगा. यानी इसको Okay, आप sir. थोड़ा सा यूं समझिए, जस्ट लाइक दैट. बट एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही दिया जाएगा एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गेट कंफ्यूज्ड. तो अब आप ऐसे समझिए. तो I की वैल्यू कितनी है? 1. नाउ आफ्टर दैट I विल बी 2. एक बात आपको और बता दें, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस आर वेरी हाई स्कोरिंग क्वेश्चन ऑफ योर पेपर. या तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे या यू विल गेट 0. ओके, दैट्स व्हाई हम इस पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. एंड दे आर एक्सट्रीम लेवल क्वेश्चन जो आज हमने लिख दिए हैं. अगर आप ये कमांड कर लेते हैं तो आप सब कर लेंगे. I की वैल्यू 2. क्या 2 लेस देन 5 है? करेक्ट. C++ 3. देन I की वैल्यू हो जाएगी 3. 3 लेस देन 5? यस. देन C++ 4. I++ 4. 4 लेस देन 5? करेक्ट. C++ I++ 5. 5 लेस देन 5, कंडीशन अभी भी ट्रू है. C हो जाएगा आपका 6. अब I की वैल्यू हो जाएगी 6. Now 6 is not less than equal to 5. That means your condition is false. Loop break. अब जब ब्रेक हुआ तो आपको ये स्टेटमेंट मिला और ये स्टेटमेंट कह रहा है कि C को एक बार और बढ़ा दो. Now C will become 7. So my output will be 6 gap 7. Agree or not? Okay, sir. Just a moment. Yes, sir. Compile and I am running. Now can we check the second output whether it's coming or not? Can you please second output? The 6 and 7. Okay, sir. Yes, sir. Understand? Thank you, sir. वो आंसर सही नहीं होते हैं जो अनीस सर या कोई टीचर या कोई स्टूडेंट बताए. जो जावा का कंपाइलर कंपाइल करके देगा वो आंसर सही होंगे. अंडरस्टैंड? चलिए अब हम इसको क्लियर करते हैं. नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट. 1 सेकेंड. आज हमारे ये सारे क्वेश्चन डिस्कस हो जाएं. इट्स अ बिग अचीवमेंट. थर्ड. Okay. Do you understand the pre-increment and post-increment concept, my dear student? Yes, sir. अभी आपने सुना है, पढ़ा है. कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम ऐसा मानकर चल रहे हैं आज कि आपने क्लास में पढ़ी होंगी. वैसे तो हम पूरा क्लास पढ़ाएंगे. कल से आदिल और विक्टर, कल से आपका बैच सेपरेट हो जाएगा. आज आपको इनके साथ रखा है. Tomorrow I will teach you in a separate class.
क्योंकि जो फ्रेश बैच स्टार्ट हुआ है उसमें आप रहेंगे। सी की वैल्यू कितनी है 1, एस की वैल्यू कितनी है 0। प्लस प्लस सी का मतलब है कि सी की वैल्यू को पहले बढ़ा दो। प्लस प्लस सी का मतलब है फर्स्ट इंक्रीज द वैल्यू देन कंपेयर। प्लस प्लस मींस प्री इंक्रीमेंट, तो पहले वैल्यू को बढ़ा दो। अब 2 विल बी कंपेयर विथ 4। 2 इज लेस देन 4, करेक्ट। 2 4 से छोटा है। S इज इक्वल टू S प्लस सी, 0 प्लस 2 2 एंड C प्लस प्लस C को एक बार और बढ़ा दो। नाउ प्लस प्लस C का मतलब है पहले C को इंक्रीज करो 4 and 4 less than equal to 4, it's not less than but equal to 4. Okay, it's not less than but equal to 4. तो कंडीशन अभी भी ट्रू है। S is equal to S plus C, 2 plus 4 6 and C plus plus C कितना हो जाएगा 5। Wait, now I am going to discuss a very important point. Please concentrate on this point, full concentration. Now C has become 5. प्लस प्लस C मतलब पहले C की वैल्यू इंक्रीज करो, देन आफ्टर दैट चेक द कंडीशन। तो C is 5 right now, तो फर्स्ट ऑफ ऑल C will be increased. Now 6 less than equal to 4, condition is absolutely false. अगर कंडीशन फॉल्स है तो चाहे वो while का लूप हो चाहे वो for का लूप हो, it has to be break. तो अब आपके 6 पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। Now I will come out from the loop CS. तो वैल्यू ऑफ C is 6 and the value of S is 6. Should we check it? क्या हमें इसे चेक करना चाहिए? नो सर, समझ गए। मैं आपको दिखा दूं, ऑलरेडी हमारा आउटपुट आ रहा है C6 S6। कैन यू प्लीज कंफर्म? डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. ओके। अब एक चीज और, ठीक, अगर यही प्लस प्लस पहले ना लगकर बाद में लगे होते। मुस्तफा हैज आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन, अब क्या होता? बहुत इंपॉर्टेंट आउटपुट है ये भी। सर बाद में इंक्रीमेंट होता, पहले नहीं होता। मतलब हो गया पोस्ट इंक्रीमेंट। इसका क्या मतलब हो गया? पोस्ट इंक्रीमेंट। Post increment. पोस्ट इंक्रीमेंट। तो अब अगर पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया तो C की वैल्यू कितनी है 1, बहुत ध्यान से देखना, और S की वैल्यू कितनी है 0। अब पहले जो भी C की वैल्यू है उससे कंपैरिजन होगा। तो C कितना है 1 लेस देन इक्वल टू 4, करेक्ट। एंड जैसे ही कंपैरिजन होगा वैसे ही इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। यहीं पर रहते ही रहते, यहां आएगा ही नहीं, यहीं पर इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, बिकॉज दिस इज द पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द C विल बी कंपेयर, देन आफ्टर दैट द C विल बी इंक्रीमेंट। अब C कितना हो गया 2, तो S इज इक्वल टू S प्लस C, 0 प्लस 2 2। नाउ C प्लस प्लस C विल बी 3। यहां पर तो कोई फाइट नहीं है, ये तो C प्लस प्लस। अब C कितना है 3, तो पहले 3 कंपेयर होगा, 3 लेस देन 4, करेक्ट। और आफ्टर कंपैरिजन इमीडिएटली दिस वैल्यू हैज बिकम 4 ड्यू टू प्लस प्लस ऑपरेटर, ड्यू टू दिस प्लस प्लस ऑपरेटर। नाउ S इज इक्वल टू S प्लस C, 2 प्लस 4 6, नाउ C प्लस प्लस 5। अब देखो, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5 कंपेयर होगा, क्या 5 लेस देन 4 है? नो नो, कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई, लेकिन इमीडिएटली दिस विल बिकम 6।
this will become 6. Understand? Yes, sir. Excuse me, sir. Yes. सर फॉल्स होगी तब भी वो प्लस होके 6 हो जाएगा. हाँ, क्योंकि फॉल्स के बाद ये स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट होगा ही. Can you please confirm? Yes, sir. Can you please confirm? तो in most Yes, of the sir. colleges, Yes, sir. ठीक है, आज आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ आउटपुट डिस्कस कर रहे हैं. दिस इज नॉट अ बेसिक लेवल ऑफ आउटपुट, क्योंकि मैंने जितना आप लोगों को पढ़ाया है उस हिसाब से हमने आज के आउटपुट फ्रेम किए हैं, और हर आउटपुट पे आप एक नई चीज सीखेंगे. और यू डोंट वरी अबाउट इट. अगर आपको आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज नोट डाउन दैट प्रॉब्लम एंड आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो. ओके, तो संडे हमेशा याद रखिए एक स्पेशल डे होता है हमारी प्रोग्रामिंग के लिए, और वो आगे भी रहेगा. नाउ कमिंग बैक, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है, मैं एक डिस्कस कर देता हूं ये वाला, बाकी आप लोग ट्राई कीजिएगा, नहीं होता है तो मैं बताऊंगा. ठीक है, तो ये वाला मैं डिस्कस कर लेता हूं. इन क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यू जस्ट मेंटेन द साइड टेबल. अगर आप साइड टेबल से करते हैं तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा. एग्जाम में हमेशा मान के चलिए स्पीड के नंबर नहीं है, स्पीड के नंबर नहीं है, आपके सही क्वेश्चन के मार्क्स हैं. जिसने कॉपी जल्दी जमा कर दी उसको भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे जो सबसे आखिर में जमा कर रहा है. तो डोंट वरी, ठीक है. a इज इक्वल टू 1 एंड x इज 0. a++ का मतलब है जो भी a की वैल्यू है, वट एवर द वैल्यू ऑफ a, जस्ट राइट डाउन. एक मिनट, जरा सा इसको हम नीचे कर लें. हाँ, जस्ट राइट डाउन. उसके बाद आफ्टर राइटिंग द वैल्यू ऑफ a, उसके बाद जाकर इंक्रीज करो. प्लस a का मतलब है जो भी वैल्यू a की है पहले इंक्रीज करो, बाद में लिखो. फर्स्ट इंक्रीज देन यूज. इसका मतलब फर्स्ट यूज देन इंक्रीज. a++ का क्या मतलब है? What is the meaning of a++? जो भी वैल्यू a की है, whatever, just write down and increase. Plus a++, whatever the value of a is, just write down then increase. And after that, the final value of the a, whatever the last value, just put it down. अब इसका कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेगा. 3 3 6 1 7, 7 और 4 11, 11 और 5 16. लेट मी चेक के 16 आ रहा है या नहीं आ रहा है. माई आंसर इज ऑलरेडी देयर. नाउ यू कैन सी. अंडरस्टैंड? Yes, sir. इसी सेक्शन के 2 क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़े हैं ताकि आप कर लें. कर लेंगे ना, या मैं Yes, sir. करवा दूं? जैसा आप कहें, जो आपका आदेश. Sir, I will try. वेरी So गुड. we will. ठीक, वैसे कुछ लोगों ने ट्राई किया भी होगा. आई हैव गिवन द सफिशिएंट टाइम टू ऑल ऑफ यू. Yes, sir. ओके, नो प्रॉब्लम. ठीक है, और ये मैंने आपके ग्रुप में भी दे दिए हैं, और अभी आंसर के साथ आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे. Okay, yes, students are saying that sir, we will try. Okay, now मैं आ रहा हूं 5th section में. Switch based questions are very interesting. अच्छा, before starting the switch based question, I want to ask which data types
can be supported with the switch case? Which data types can be supported by switch? Nandini has raised the hand. Okay, Nandini, please tell me. The character Okay. And integer. and Sir, integer. yes, and that's it. Anybody Yes, want sir. to do any kind of amendment in this changes? No, all date primitive data type नहीं. ठीक है, wait. Float cannot be supported with the switch. Double cannot be supported with the switch. Boolean cannot be supported with the switch. String cannot be supported with the switch. ये सारे डेटा टाइप्स, सॉरी, बूलियन आपका सपोर्टेबल नहीं है, सिर्फ वो सपोर्टेबल है. मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूं. केवल वो सपोर्टेबल हैं जो इंटीजर में कन्वर्ट हो सकते हैं बाय इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन. यानी कैर को आप इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट को आप इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, बाइट को आप इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है. बाइट, शॉर्ट, आईएनटी एंड कैर, इनके अलावा कोई भी डेटा टाइप सपोर्टेबल नहीं है. अगर आप स्ट्रिंग पास करेंगे तो एरर आ जाएगी, फ्लोट पास करेंगे तो एरर आ जाएगी. अंडरस्टैंड? आपका लिखा भी है द फ्लोटिंग पॉइंट टेस्ट इज नॉट अलाउड विद द स्विच बट इट इज अलाउड विद द इफ, जो मैंने शीट दी है डिफरेंस की. अंडरस्टैंड? शॉर्ट एक तरह का डेटा टाइप होता है, ठीक है. सबसे स्मॉलर डेटा टाइप है बाइट विच ऑक्यूपाइड 1 बाइट, देन आफ्टर दैट शॉर्ट विच ऑक्यूपाइड 2 बाइट ऑफ स्टोरेज, देन INT 4 बाइट ऑफ स्टोरेज. अंडरस्टैंड? ओके. अपार्ट फ्रॉम दैट कैर, बिकॉज कैर को हम INT में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन. एक पूरा लेक्चर आपका शेड्यूल्ड है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट पे. समवन इज सेइंग सर आई गॉट डिस्कनेक्टेड. हु इज डिस्कनेक्टेड? रीजॉइनिंग. ओके. अक्सर बड़े बड़े लेक्चर्स में ऐसा होता रहता है, रीजॉइनिंग, ज्वाइनिंग, नो प्रॉब्लम, यू जस्ट रीजॉइन अगेन. ओके फाइन. तो फिर आगे चलते हैं. ओके, जस्ट सी. तो अभी x की वैल्यू कितनी है? 1. अगर x हमारा कैरेक्टर बेस्ड है, इट्स अ कैरेक्टर बेस्ड x. एक मिनट रुक जाओ, इसको यहां लेना पड़ेगा कैरेक्टर बेस्ड, और ऊपर भी डिफाइन है एक्चुअली x कहीं पर. एक मिनट, थोड़ा सा एक डिफरेंस आ जाएगा, इसको आप डी ले लीजिए प्लीज. बस लेट मी कंपाइल. डी किसी के साथ क्लैश नहीं कर रहा है, ठीक. उसको लेने का एक रीजन था, मैं बताऊंगा अभी आपको. आप लोगों ने अभी ASCII वैल्यूज वगैरह नहीं पढ़ी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, वो मैं सब बताऊंगा. डी की वैल्यू कितनी है? 1. ठीक है, D1. तो डी की अगर वैल्यू 1 है तो केस 0 तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, क्योंकि डी की वैल्यू 1 है. तो यहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा आपका, क्योंकि जो डी की वैल्यू होती है उससे मैच करता हुआ केस एग्जीक्यूट होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या प्रिंट होगा? ब्लू. देन व्हाट विल हैपन? फॉल थ्रू मतलब ब्रेक स्टेटमेंट मिसिंग. वेरी गुड. अब हम केस 2 में आ गए. पर्पल विल बी प्रिंट. अंडरस्टैंड? इसको पर्पल समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए. नाउ देयर इज नो ब्रेक, तो ड्यू टू फॉल थ्रू अगेन दिस मच विल कैलकुलेट. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? Sir, 9. 9. Understand? Now you can see that there is no break after the case 3. तो डिफॉल्ट सेक्शन में इंटर होकर इनवैलिड भी आ जाएगा. तो मेरे ख्याल से ये आउटपुट आना चाहिए दिस मच. Understand? And the output is already there. Now you can see.
मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे आउटपुट्स कंपेयर करता हुआ चल रहा हूं. ओके, नाउ कमिंग बैक. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. Very important section. What will be the value of this? 9. 9. Sum Sum 1 1. space 9 space 9. What about this? So sum 2, 2, 3, 4. Sum 2, 3, 2, 3, 4. इसका आंसर आएगा sum 2. सेकेंड स्लॉट भी हमारा ओवर होने वाला है. ठीक है, सम 2 और इसका आंसर आएगा 3, 2, 3, 4. These values will not be calculated. Anyone agree with me or not? Yes, sir. Yes, sir. Nandini, are you getting? Yes, sir. Okay. क्यों नहीं हुआ ऐसा मैं बताऊंगा. आपने ब्रैकेट नहीं लगाया. ब्रैकेट नहीं लगाया, एक रीजन तो ये भी है. तुमने मैग्नेट देखा है? मैग्नेट, मैग्नेट के कांटेक्ट में जब भी कोई आयरन आता है या दूसरा मैग्नेट आ जाए तो वो फौरन अट्रैक्ट करेगा. हाँ, तो देखो ये जो डबल कोट्स में तुमने लिखा है, दिस इज अ स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्लास इन द जावा. तो जब स्ट्रिंग के कांटेक्ट में कोई भी डेटा टाइप आता है, चाहे वो फ्लोट हो, चाहे वो डबल हो, चाहे वो बूलियन हो, चाहे वो इंटीजर हो, वो उसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है. तो पहले ये पूरा एकदम से नहीं आया, पहले 2 आया, तो 2 जब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ तो सम 2 2 हो गया. फिर इस 2 ने और इस सम 2 ने 3 को भी स्ट्रिंग बना दिया. फिर इन दोनों ने मिलकर इसको भी स्ट्रिंग बना दिया. देन फाइनली ऑल द वैल्यूज हैज बिकम स्ट्रिंग. और स्ट्रिंग कभी आपस में कैलकुलेट नहीं होती, स्ट्रिंग आपस में कॉन्कैटिनेट होती है. स्ट्रिंग इज अ वेरी बिग चैप्टर जो हम आगे डिस्कस करेंगे. व्हाट अबाउट दिस? इसका आंसर क्या आएगा? So 6. इसका आंसर कितना आएगा? Sir, 6 और space 9. Sir, हाँ. 1, 2, 3 space 9. एक बता रहा है ये आएगा और साथ में 2. क्या बिल्कुल क्लोज होके आएगा या बीच में गैप रहेगा? The space then स्पेस नहीं है. दिस इज नॉट स्पेस, दिस इज अ ब्लैंक स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन. ये स्पेस नहीं है. देखो स्पेस ऐसा होता है, मैं बता दूं पहले, देखो ध्यान से देखना. दिस इज स्पेस, ये स्पेस है. सर अगर स्पेस होता तो सर डबल जो कोलन लगे उसके बीच में स्पेस होती. हाँ, स्पेस नहीं है ये ब्लैंक स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन है. तो देखो तुम्हारा जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो लेफ्ट हैंड साइड से होता है. तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले तुमको ये मिला और इससे पहले कोई स्ट्रिंग है नहीं. देयर इज नो स्ट्रिंग बिफोर. बाद में है लेकिन पहले नहीं है. तो अगर पहले नहीं है तो ये एज ए इंटीजर ट्रीट होंगे सारे. तो अगर ये एज ए इंटीजर ट्रीट होंगे तो इसका कैलकुलेशन हो जाएगा. इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 3 2 5 और 1 6. वेट, 6 आया. अब 6 के बाद ब्लैंक स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन है और ये ब्लैंक स्ट्रिंग इस पूरे को स्ट्रिंग बनाएगी. लेकिन क्योंकि ब्रैकेट लगा है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा. तो 4 3 7 और 2 9, तो 69 विल बी द करेक्ट आंसर. 69 will be the correct answer. Just wait for a second. I will show you, then I will discuss. See, थोड़ा सा नीचे है स्क्रीन, शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा हो. शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा हो. देखो एक बात बता दें, दिखाई दे रहा है या मैं सर्कल कर दूं? दिखाई दे रहा है. 69
दिखाई दे रहा है? दिख रहा है। ओके ओके गुड। अब ठीक, वापस एक बार और इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक बार और, क्योंकि कोई चीज अगर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है तो मैं इसको दोबारा फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। कंप्लीट वीडियो विल बी अपलोडेड टुडे इवनिंग, तो आप इसको एक बार वॉच भी कर लीजिएगा। नाउ जस्ट 1 सेकेंड। Sir, we can convert any string type value to the any other data type. हाँ कर सकते हैं, By लेकिन using the लेकिन that string must be in the form of numeric. par से होती है convert. Integer dot parsin, double dot parse double, float सर नहीं इंटीजर नहीं सर, जिसमें भी कन्वर्ट करती है, जैसे इंटीजर में करनी तो इंटीजर, डबल में तो डबल, फ्लोट में करनी तो फ्लोट। मैं वही बता रहा हूं कि integer dot parse int, double dot parse double, float dot parse float, ये फंक्शंस हैं जो कि स्ट्रिंग को किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। इट्स एब्सोल्युटली अ सेपरेट लेक्चर जो हम कवर करेंगे, अभी वो इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हेलो को इंटीजर में कन्वर्ट कर दें। जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर, ठीक है? अदरवाइज नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ जाएगा, तो मैं उसको डिस्कस करूंगा, बट दैट्स अ सेपरेट लेक्चर। अच्छा सर उसी तरह हम लोग सर किसी भी और डेटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ कर, बाय यूजिंग स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। हाँ लेकिन बिना फंक्शन के भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? अगर हम किसी भी डेटा टाइप को ब्लैंक स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट कर दें तो बिना फंक्शन के भी कन्वर्ट हो सकती है, ओके? और स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ भी है, वो भी एक फंक्शन है, उससे भी हम yesterday I was reading the functions now, that's why I am seeing some ठीक है? एक लेक्चर जो है इस पर भी हमारा होना है, बस जरा सा इन चीजों से हम फ्री हों तो फिर हम उधर आए। जस्ट मिनट। अच्छा अब देखो, इस चीज को हम एक बार और एक्सप्लेन कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, थोड़ा सा गैप बना लेते हैं। इसका जो एग्जीक्यूशन है वो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होगा, तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे तो इसके पहले कोई भी स्ट्रिंग नहीं है, बाद में है, आई एग्री, लेकिन बाद में तो हम तब पहुंचेंगे जब ये पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो ये सब एज ए इंटीजर ट्रीट होंगे, तो जब ये सब इंटीजर ट्रीट होंगे तो इनका कैलकुलेशन हो जाएगा 3 to 5 और 1 6। अब ये 6 हो गया, अब 6 के बाद हमें स्ट्रिंग मिल रही है, इट्स अ ब्लैंक स्ट्रिंग, इट्स अ ब्लैंक स्ट्रिंग। अब ब्लैंक स्ट्रिंग क्या करेगी, इस पार्ट को इस पार्ट से कैलकुलेट होने से रोकेगी। अंडरस्टैंड? वेट, तो ये पार्ट कितना हुआ, 4 3 7 और 2 9। अब इसने क्या किया, इसने क्या किया, इन दोनों को आपस में कॉन्कैटिनेट कर दिया। अंडरस्टैंड? अगर हम यही ब्लैंक स्ट्रिंग वाला पार्ट हटा देते, ऐसा होता, तो अब ये पूरा पार्ट कैलकुलेट होकर 15 आ जाता। कितना आ जाता? 15 सर टोटल कैलकुलेट हो जाता, टोटल कैलकुलेशन। तो यहां पर जो ब्लैंक स्ट्रिंग थी वो इस पार्ट को इस पार्ट से कैलकुलेट होने से रोक रही थी, और इन दोनों पार्ट्स को उसने कॉन्कैटिनेट कर दिया, तो 69 विल बी द आंसर। ऑलराइट, यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सम 3 और उसके बाद 3 2 6। सर ये देखो, और ये 69, ये 234। यस, एनीवन वांट टू आस्क द क्वेश्चन? माय दिस सेक्शन इज कंप्लीटेड एक्चुअली। जस्ट 1 मिनट। Sir, yesterday I was reading the question paper in the 10 years book. In that there was an output question. Sir, उसमें लिखा था string str is equal to compute your computer is fun and boolean k str dot start with your system dot out dot println k and the output was true. कहीं पर है वो क्वेश्चन, उसको जरा क्लिक करके भेजो। सर भेज देते हैं, फोटो क्लिक करके भेजो।
Actually, we have only 30 seconds right now. The class is about to complete. हाँ, बफर रीडर नेक्स्ट क्लास में ले लेते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में बफर रीडर पढ़ा देंगे, किसी के क्लास में आ रहा है, कोर्स में आ रहा है, ठीक है? क्लिक करके भेजो अहमद। और इसका तो सेशन ओवर हो गया। Okay, now I think that this is sufficient for today's lecture. Okay, and Sir, I have sent. he's sending and I will give the answer in the group. Understand? Because the session time is over.